Thank you very much to Dr. Bhatia and the organizers for inviting me and all of you for giving your precious time. Um, I'll keep it in English and Hindi. I've realized that both the languages is always a good option. Or I think I have had the longest journey with the issue of environment sustainability in this room, almost for 30 years now. In the city of Mumbai, I have been involved one way or the other. 30 years back, I was a student. I was in Bandra and National College. I remember first week of October in 1995, we did the Wildlife Week and we held films and sale of materials. And that was also the year I set up the composting pit in my college in 1995. And the topic which we are talking over here is think globally, act locally and think beyond climate. अभी आप में से कितने लोगों ने पता नहीं follow किया होगा. COP30 is going on, just getting over. And Bill Gates came out with his memo on 28th of October. And which has been controversial. It's been discussed quite a lot. And I would encourage all of you to have a look at that memo on 28th of October, just before COP30. That was his message, kind of a thing. And though I generally don't agree with Bill Gates on a lot of things on the developmental agenda, but this was one place where I realized, and I just made sure that I had read it yesterday. I said before I am coming here, I should have read it completely and be aware of what are the contents. And in a sense, quite correctly, he's saying, ki, let's get over this kind of almost hype, he's saying, or the crisis mentality around climate change. And his central contribution in that blog is saying, let's start thinking on human welfare. And of course, he's linking human welfare to a couple of things like malnutrition, vaccination, etc., which I'm not entirely in agreement with. But I will invite you to think. How many of you are from Mumbai over here? Can you raise your hands? Or Pune? What is it? Are there more people from Pune or Mumbai? Mumbai? How many people from Mumbai? Students? Quite a few. Anyways, whichever city you're coming in, what I'm going to talk, which city are you guys from? Since I can see you. Huh? Jal. Okay, varying different cities. Nice. That's good. So, अब I'm linking climate change and human welfare. हमारे मुंबई में पिछले 10 साल में एक जो बहुत भयंकर क्राइसिस हुई, जिसको हम क्लाइमेट इशू नहीं मानते हैं. BST, if you are aware, our public bus service has been unfortunately completely been decimated. उसके कारण क्या हैं उस पर मैं अभी जाऊंगा नहीं, बट जो हमारी पब्लिक बस सर्विस है उसमें करीब 4000 बसें हुआ करती थी, अब वापस आ रही हैं. पिछले 10 साल में उसको घटाया गया और ऑलमोस्ट एवरी डे अभी भी 25 to 30 lakh people are dependent upon using the public bus service to go around the city. आज हम यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से डिस्कशन हुआ, भगवान स्टार्टेड विथ खारघर से आने में कितनी दिक्कत हुई. एंड द फर्स्ट थिंग आई वाज टेलिंग हिम कि अब वो हमारी एक नई मेट्रो है मानखुर्द से, वो स्टार्ट होएगी. बट 15 साल पहले मेरे को याद है कि मैं चर्चा में रहता था कि BKC में आपको एक BST का टर्मिनल होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट टर्मिनल शुड बी लिंक टू ऑल द की रेजिडेंशियल एरिया. जैसे आपका उत्सव चौक है खारघर में, वहाँ से हर 5 मिनट में या हर 2-3 मिनट में एक बस BKC के लिए निकलनी चाहिए, सो दैट भगवान डजेंट हैव टू टेक अ उबर और एन ओला. आप 1000 रुपये खर्चा करोगे, उससे अच्छा आप 150-200 रुपये में BKC के हब पे आ जाओगे और BKC के हब से आप ट्रांसफ़र करके लैंड्स एंड जाना है, जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हो. अब कोई बोलेगा कि एक तो क्या डूम्सडे सिनारियो बहुत हो गया, विच बिल गेट्स इज़ वेरी करेक्टली ऑब्जर्वेशन कि आप क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट्स भी ले लो, फिर भी ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव. कि इट्स नॉट लाइक इतना भी ख़राब हो जाएगी सिचुएशन कि हम जो एक तो हमको क्या है, हॉरर मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है. हॉरर मूवीज़ की जॉनर है कि जानबूझ के डरने में बहुत मज़ा आता है. सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोजेक्टर लगाएंगे और फिर उस पर बैठ के डरेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज़ लाइक अ हॉरर शो. इट इज़ the threat is real, we need to do something about it, but what we need to do about it is by acting locally. आप जो भी शहर से आ रहे हो, जलगांव, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, can you look into your public bus service? Is it it's a climate issue, it's a welfare issue, it's a climate issue.
Bhagwan was correctly observing, in Mumbai we've spent huge amount of time in the past 15 years raising the consciousness about making the city walking and cycling friendly. I'm carrying some of my I didn't make a PPT, I was not aware, but I'm just carrying this thing. हम मुंबई को मैक्सिमम सिटी बुलाते हैं, आपने पढ़ा होगा दैट एडाज मैक्सिमम सिटी. हमारा कहना है कि कैन, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर मुंबई, वी आर सेइंग फॉर एनी सिटी, 100 top 100 cities in the country, we are coined a term called maximum city, minimum agenda, good footpaths to walk on, and a great walking experience. Now a city which cannot ensure that उसके citizens को चलने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है. आज आप लैंड्स एंड से अगर आप सिर्फ मन्नत तक जाने को जाओगे, आप सोचोगे चलो इसके बाद हम शाहरुख को हाय बोल लेते हैं कि हमने आज अच्छी अच्छी चर्चा की, अब जाते जाते आपको भी एक बार दर्शन दे दें, तो यहाँ से आप मन्नत तक चलने के लिए अच्छा फुटपाथ नहीं है आपके लिए. एंड हिसाब से आपको यहाँ से सेंट एंड्रूज चर्च तक भी चल पाना चाहिए, या हिल रोड एंड बैंड्रा स्टेशन तक चल के जा पाना चाहिए, बट द वॉकिंग कंडीशन आर टेरेबल. तो हम ऐसी स्थिति में क्या हम क्लाइमेट के बारे में चिंता कर रहे हैं कि 50 साल बाद तो सी लेवल राइज हो जाएगा, 1/3 मुंबई डूब जाएगी, ह्यूमैनिटी विल गेट ओवर. अब ह्यूमैनिटी का 50 साल बाद जो होगा होगा, आपके साथ आज क्या हो रहा है? हाँ, एक तरफ हम बोल रहे हैं लाइफस्टाइल डिसीजेज बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स हमको बोल रहे हैं आप जितना ज़्यादा चलेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उतना अच्छा है, लेकिन कहाँ चलेंगे? तो अगर हम एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी कम टुगेदर एंड वी आर एबल टू एड्रेस issues which impact our welfare on a daily basis, and if you make the city walking friendly, 100% it will become also a climate friendly city. Walking has no emissions. साइकिलिंग में मैं फिर भी बोलूँगा कि साइकिलिंग को बनाने के लिए जो स्टील यूज़ की है उसमें कुछ एम्बॉडीड एमिशंस हैं. वॉकिंग है ज़ीरो एमिशंस, आप अपनी ऊर्जा से चल के जा रहे हैं. 500 मीटर तो कहीं पे भी चल पाना चाहिए, 500 मीटर इज़ मिनिमम चल पाना चाहिए. अब हम में से कुछ लोग हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम इतने बिजी लोग भी नहीं है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग बिजी होते हैं, 1-1 मिनट काउंट करते हैं. हम एनवायरनमेंट वाले लोग को टाइम की कुछ पड़ी नहीं है, हम पूरी ज़िंदगी अपने ऐसे ही लगाई हुई है, तो और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको. लेकिन फिर भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहा है, BKC में भी काम कर रहा है, उसको 250 मीटर अपने मेट्रो स्टेशन तक चल के आना है, तो चल पाना चाहिए. तो मेरा यही कहना है कि क्लाइमेट के बियॉन्ड आप सोचिए, एंड क्लाइमेट हैज़ बिकम अ बिग बज़वर्ड. मैं उस पर सेपरेटली भी कमेंट्री करता रहता हूँ. हमारा एक प्रोग्राम है क्लाइमेट पाठशाला, which we do a much more deeper dive into climate issues, which I'll be happy to do with the student community, with the corporate community, anybody, where we go through in a much more detailed way कि what exactly is the climate issue and what can you do about it. अब दूसरा मेरा एक इशू है जो हम वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम चलाते हैं. स्मिता इज इन्वॉल्व, शुभजीत जानते हैं, सब मिले हुए हैं. हम बोलते हैं कि सफाई बैंक ऑफ इंडिया, ये हम स्कूल्स और कॉलेजेस में सफाई बैंक ऑफ इंडिया खुलवाते हैं, वेर यू ओपन अ सफाई बैंक एंड ऑल दैट यू कलेक्ट इज दिस काइंड ऑफ मटेरियल. ये सब हम खाते हैं. ट्रफल्स लेज आपने सबने खाया है. हाँ, ये अलग अलग अब तो ब्रांड्स इतनी हैं कि मेरे को भी आइडिया नहीं रहता कि कौन सी ब्रांड्स हैं, हज़ारों ब्रांड्स हैं. नाउ जैसे वो शुभजीत बॉटल के बारे में बता रहे थे कि BMC के पानी को लेके बॉटल, अब ये भी एक पैकेजिंग का उदाहरण है. दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ पैकेजिंग. वो जो पानी की बोतल दिखा रहे थे वो तो फिर भी रिसाइकिल हो जाती है, इसको कोई रिसाइकिल नहीं करता, इसको कोई उठाता नहीं. ये डंपिंग ग्राउंड में हज़ारों करोड़ के मात्रा में हर दिन जाता रहता है. अब द्विवेदी सर ने यहाँ पे पेड़ों के बारे में बताया कि एवरी ग्रेजुएट शुड प्लांट 5 ट्रीज़. अब ये जो ट्रीज़ का एजेंडा है इसको मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका था, कि मैंने बोला ये ट्रीज़ का एजेंडा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है, इमोशनली हमको अपील करता है. लेकिन आज एज अ ग्रेजुएट आप सब लोग बैठे हैं, 5 पेड़ लगाने के लिए आपको नानी दादी याद आ जाएगी कि जगह कहाँ पे है. फिर अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये पेड़ को आपको इंश्योर करना है कि 10 साल का तक का बड़ा होएगा, तो आप अपना करियर वरियर छोड़ के पेड़ के पीछे तो भागेंगे नहीं. भले आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह में लगाया हो या आपके घर के बैकयार्ड में लगाया हो, लेकिन पेड़ को पहले जगह ढूंढ पाना मुश्किल है. लेकिन अगर मैं आप में को बोलूँ कि आप हर दिन आपका जो कचरा जनरेट हो रहा है, जिसमें से सिर्फ एक कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं रैपर, मल्टी लेयर पैकेजिंग, सिर्फ आप इसको इकट्ठा करेंगे, आपके स्कूल कॉलेज में सफाई बैंक खोलेंगे और उसमें सब 1000 2000 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इकट्ठा करेंगे.
आप साल में लाखों ऐसे रैपर्स को डंपिंग ग्राउंड जाने से बचा सकते हैं। हमारा स्मिता के साथ टाइप है, हम अपने जितने रैपर कलेक्ट होते हैं उनके पास भेजते हैं। तो जब ये लाखों रैपर साफ़ कंडीशन में कलेक्ट होते हैं तो रिसाइकलर्स को बहुत फ़ायदा हो जाता है। नहीं तो उनको क्या करना पड़ता है कि वो कचरा चुनने वालों को डंपिंग ग्राउंड भेजना पड़ता है, फिर वो बहुत ही गंदी कंडीशन में से रैपर्स को निकालते हैं और उसमें भी रैपर साबुत नहीं मिलते हैं। ये रैपर जब तक डंपिंग बीएमसी की ट्रक में गया है और वहाँ तक गया है, इसके चिथड़े उड़ गए होते हैं। तो एक पीस इसका इधर मिलेगा, एक पीस उधर मिलेगा, आप ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें बदबू आ रही है, कचरा है। लेकिन अगर आपने और सिर्फ ये आप कंपनियों में खोल सकते हैं, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आर हियर। आप अपने कंपनी में खोल सकते हैं कि द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ वंस इन अ वीक ब्रिंग ऑल द रैपर्स कलेक्टेड और एक जगह पे। तो लॉजिस्टिकली हमको बहुत फ़ायदा हो जाता है स्कूल कॉलेज में, क्योंकि एक ही छत के नीचे हज़ारों फैमिलीज़ आके कॉन्ग्रीगेट करती हैं। अगर आप मेरे को एक एक के घर जाने को बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आई एम सेइंग कि लुक एट द क्लाइमेट इशू फ्रॉम द लेंस ऑफ योर डे टू डे लिविंग, कि आप जहाँ रह रहे हैं आप अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में कम्युनिकेशन करें कि मेरे को वॉकिंग फ्रेंडली सीट चाहिए, कि मैं चलने के लिए आज सेफ़ नहीं है। स्मिता वॉज पॉइंटिंग आउट टू मी वेरी करेक्टली द इशू ऑफ पेडिस्ट्रियन सिग्नल टाइमर्स। आप जंक्शन पे जाते हो और जंक्शन क्रॉस करना चाहते हो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के जंक्शन का शी वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल, सिग्नल का टाइमर सिर्फ 7 सेकेंड 10 सेकेंड है। तो जब तक आदमी क्रॉस करने के लिए स्टार्ट करता है तब तक सिग्नल लाल हो जाता है, गाड़ियों के लिए हरा हो जाता है, गाड़ियाँ भाग रही हैं, और फिर वो एंग्जाइटी गाड़ी वाले को भी है, चलने वाले को भी है। हम कह रहे हैं जंक्शन शुड बी अ क्लाइमेट इशू ना। अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना सीरियस हैं आप, तो वाई आर यू मेकिंग योर सिटीज़ कार फ्रेंडली, मोटराइज्ड, जिनके ईंधन से ही एमिशंस निकल रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो योर सिटीज़ जंक्शंस आर अ परफेक्ट प्लेस कि आपका सिग्नल टाइमर शुड बी मॉड्यूलेटेड, कि जब मॉर्निंग और इवनिंग में पीक आर होता है तब वो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा टाइम देगा। 12 बजे शायद कम हो जाता है तो कम देगा। स्कूल के बच्चों के लिए सेपरेट आवर्स होते हैं तो वो टाइम पे। तो हाउ वी डिज़ाइन आर सिटीज़, मैंने मुंबई सस्टेनेबिलिटी सेंटर 2016 में यही मोटो से खोला था कि सिटीज़ होल्ड द की। आज अगर हमको अपने कोई भी सस्टेनेबिलिटी गोल मीट करना है, क्लाइमेट गोल, BN वॉज टॉकिंग अबाउट कॉरिंग, तो मैं उनके साथ ब्रेक में वही मजाक कर रहा था। मैं बोला हमारे रोड्स जो हैं, आपके जो पहाड़ हैं उन पर डायनामाइट लगा के उनको तोड़ के उसमें से खड़ी बनाते हैं हम, दैट खड़ी को हम रोड बनाने में यूज़ करते हैं। आपके पास चॉइस है कि आपका रोड अच्छा बने तो 20 साल चलेगा, लेकिन हमारी करप्शन के चक्कर में वो 2-3 साल ही चलता है। फिर हम उसको स्क्रैप करते हैं, वो खड़ी को उठा के फेंक देते हैं, वो डेबरी बन जाती है, वो मैंग्रोव में फेंकते हैं फिर, और फिर हम वापस से पहाड़ को जाके डायनामाइट लगाते हैं, उसमें से खड़ी निकालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत लोग करोड़ोंपति अरबोंपति बन चुके हैं। एंड फ्रॉम अ क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अपने शहरों पे फोकस कर रहे हैं तो पानी का इशू है, कचरे का इशू है, मोबिलिटी का इशू है, आप निकमार से हैं, हाउसिंग का इशू है। हाउसिंग इज़ सच अ बिग कंट्रीब्यूटर। ऑल आर बिल्ड स्पेसेस। आज हम जिस इसमें बैठे हैं एयर कंडीशन चल रहा है, हो सकता है कि सोलर एनर्जी से भी आ रहा हो। अदानी इज़ नाउ डूइंग लॉट ऑफ सोलर एनर्जी। लेकिन जैसलमेर में जहाँ पे सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए गए हैं वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करके चिड़िया है, which has only 300 birds left in the wild. In India, only the Jaisalmer district and that area, the desert, Great Thar Desert में, now solar plants are competing with habitat of birds and other wildlife. हमको लगता है ये तो wasteland है, हमने grassland देखा, वहाँ पे हमने solar plant लगा दिया. So climate change agenda is being linked with, oh, if we convert 100% of our energy to shift from coal to renewable energy या windmills, then everything is okay. No, it is not still okay. Because those things also have an ecological footprint. एक तो हमारा ये कहना हो जाए कि भाई धरती पे सिर्फ इंसान रहेगा और लेपर्ड्स हैं और ओमकार है वो जाके बनतारा में रहेंगे, हैं, उनके लिए हम इंक्लोजर बना देंगे। बाकी पूरी जगह हमको कन्याकुमारी से श्रीनगर और कच्छ से लेके नागालैंड तक सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए चाहिए। बीच में हमको कोई पक्षी नहीं चाहिए, कोई जंगल नहीं चाहिए, कोई शेर भालू कोई नहीं चाहिए। हमको जहाँ मर्जी आएगी हम वहाँ पे रेलवे की लाइन बनाएंगे, जहाँ मर्जी आएगी हम थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे। सब चीज़ इंसानी भोग के लिए होनी चाहिए, बाकी किसी का पृथ्वी पे कोई मतलब नहीं बैठता। या तो हम उनको मार्स भेज देंगे सबको, तो या तो वो वाली हमारी मेंटालिटी हो। तो आई थिंक अगर
स्टूडेंट कम्युनिटी को भी मैं बोलना चाहूँगा कि, और ये 3 दिन पहले मैं को प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो पे भी बोल रहा था, दैट टाइम ऑल्सो आई स्पोक, कि यू डोंट हैव टू कम टू क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इशूज़ आउट ऑफ गिल्ट. आप गिल्ट से आओगे तो आप सिर्फ ऐसी कुछ टॉक सुनोगे, 4 दिन तक आप अपना कचरा कलेक्ट करोगे, कुछ करोगे. यू हैव टू कम टू इट आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड. आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए. आप धरती माँ मानो ना मानो, मतलब भगवान को मानो ना मानो, लेकिन एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि जो भी अभी हम कर रहे हैं वो नेचर के कंट्रीब्यूशन के बिना नहीं हो सकता था. ये शर्ट जो मैंने पहना है, मानता हूँ मैं, ये लेवाइश का शर्ट है, कंपनी ने बनाया है उसने मेरे को, लेकिन उसका जो कॉटन है, कॉटन को पानी, खाद, सब जो आ रहा है सब नेचर से ही आ रहा है. और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जब तक नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू टेक क्लाइमेट एक्शन. एंड दिस इज़ सर्टनली नॉट द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. मैं स्मिता को भी बता रहा था कि कितनी मुश्किल होती है हमको ये प्रोग्राम चलाने में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. सिंपल वॉकिंग, बड़ी बड़ी बातें, एमिशन ये सब तो छोड़ दीजिए, वॉकिंग. हमारा कहना है कि दिस शुड नॉट बी फंडेड बाय कॉर्पोरेट मनी एट ऑल. 15 साल से मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन हमको कॉर्पोरेट पैसा लेना पड़ता है. वी टेक इट फ्रॉम CSR फ्रॉम एवरीवेयर. दिस शुड बी फंडेड वेयर ऑल ऑफ यू, everybody who is a citizen of Mumbai should subscribe. Everybody subscribing to Netflix, everybody subscribing to Amazon Prime, whatever. 500 रुपये साल का अगर हज़ारों लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड. वी ऑल्सो नीड फुल टाइम एम्प्लॉयज़. आज ये हम होटल में कर रहे हैं, उसके पीछे करीब 100-150 यहाँ पे यूनियन है. अनिल परब जी ने तो कुछ बवाल भी मचा दिया था कुछ दिन पहले यहाँ पे. तो there is a lot of people who are working full time getting salaries, and that is how we will have to start doing our climate agenda also. How can we in small ways start supporting frontline grassroots advocacy organizations कचरे पे काम कर रही हैं, मोबिलिटी पे, पेड़ लगाने पे, मैंग्रोव्स बचाने पे. 2002 में BN सर हमने, आई वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मैंग्रोव सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई चैप्टर. 2002 में अगस्त. फॉर 10 years I ran it. I hired 6 प्रोग्राम ऑफिसर्स. 6 के 6 को मैं 3 महीने के बाद में जाने को बोलना पड़ता था, क्योंकि उतने ही फंड्स कलेक्ट होते थे कि 3 महीने की सैलरी दे सकते हैं. नाउ हु इज़ द मैंग्रोव एजेंडा इम्पॉर्टेंट फॉर? सिर्फ फॉर मी और फॉर BN और फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर? इट शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. शाहरुख खान किसी एक उनके पैसे से CSR से, ही इज़ द बिलियनर नाउ. आई थिंक ही इज़ बिकम अ बिलियनर बिकॉज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैव डोनेटेड टू हिम. He's become a donation. आप सबने डोनेशन दिया है ना शाहरुख को. That's why शाहरुख has become a billionaire. और हमारी जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आपके बैलेंस शीट बुलाऊंगा मैं, तो सबकी नानी दादी रोनी आ जाएगी कि मतलब किस तरह से खींच के लोग अपने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. तो दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि, और मैं ये 20 साल पहले बोलता था कि एंटरटेनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन स्पीशीज़, कि वो जब क्लाइमेट चेंज का सबसे डरावना भी सिनारियो होगा ना, सब डूब रहा है, मर रहा है, लोग अपने टीवी स्क्रीन पे कुछ एंटरटेनमेंट देख रहे होंगे. दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द सिटी विच इज़ द हब ऑफ मुंबई, माया नगरी, जिसमें से सब स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव बिल्डिंग होती है, कि एंटरटेनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अस दैट एवरीबडी हु वर्क्स इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर, हम उसको करोड़पति, बिलियनर बना देते हैं. And our environmental organizations are continuously struggling. So this is the thought I would like to leave you with, कि please think global but act local, and come with a sense of gratitude and not guilt. Because once you come with a sense of gratitude, I think your journey will be longer. एक last चीज़ थी, थोड़ा सा self promotion कर दूंगा मैं, लेकिन I wrote a book last year called Saving RA, and I think it is on the RA campaign, जो इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस हो गया था. तो इट्स कॉल्ड सेविंग RA, द अनडूइंग ऑफ एन एनवायरमेंटल कैंपेन. आई होप सम ऑफ यू विल कंसिडर परचेसिंग इट. आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ माई थॉट्स एंड 30 years का एनालिसिस इनटू व्हाट वेंट रॉन्ग एंड what was fundamentally wrong with the RA campaign and why it didn't succeed. And thank you once again to the organizers, and thank you everyone for patient hearing. Thank you so much, sir.